So students, today we are going to start our next poem from your first flight book, that is Animals. This is the poem where the poet is trying to compare the nature of human beings with that of animals. Like poet is trying to say that he's just comparing like human beings. What are human beings? They keep complaining about this and that, they keep crying for the things they don't have. And human beings generally, they go in front of God and pray for the things they want, है ना? They keep complaining, they keep discussing and all. Whereas animals are so self-contained, they are so placid, they are so calm that they don't complain. Animals are the kind of they're satisfied with what they have, whereas human beings are never satisfied with the things they have. If their one demand is fulfilled, another demand arises, right? Like human beings are the kind, like sometimes they desire for, like I want new mobile phone, and when they get new mobile phone, they desire for a motorbike. Okay, now I want motorbike. It's like that. The nature of human beings is that they are never satisfied with the things they have, whereas animals are always satisfied with whatever they have. Animals never complain, animals never stand in front of God and pray for the things they desire and all, which all human beings do. So here poet is trying to say that animals are far more better than human beings because they are always self-contained and satisfied. And with the poem we will see more qualities about animals according to the poet. Okay, so we'll just start the poem now. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he find complicated and false. So poet यहाँ पे बता रहे हैं कि वो animals के साथ he feels more at home. Now more at home का मतलब यहाँ पर होता है टू फील कंफर्टेबल. हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है? तो पोइट कह रहे हैं कि वो ह्यूमन बींग्स से कंपैरेटिवली एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि पोइट के अकॉर्डिंग एनिमल्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे कि ह्यूमन बींग्स बहुत फॉल्स हैं, वो लोग सेल्फिश हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वेरेस एनिमल्स नहीं होते हैं. इस वजह से पोएट को एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल फील होता है. So we'll just start the poem now. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So यहाँ पे I here is poet itself. ठीक है, आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स का यहाँ पर मीनिंग होता है कि पोएट कह रहे हैं कि वो ह्यूमन बींग्स को छोड़ के वो एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा प्रिफर करेंगे. He just want to turn away from human life and live his entire life with animals. क्यों? Because they are placid and self contained. Placid मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं. सेल्फ कंटेन्ड मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड. प्लेसिड शांत स्वभाव के होना, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड. सो उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स जो है ज़्यादा प्लेसिड और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं. इस वजह से पोएट ह्यूमन बींग्स को छोड़ के एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा प्रिफर करेंगे. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. फर्दर वो कह रहे हैं कि वो खड़े रह के बहुत देर तक एनिमल्स को देख सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर सकते हैं, और वो कितने ह्यूमन बींग से बेटर हैं वो कह सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद पोएम में पोएट ने आपको एनिमल्स की कुछ क्वालिटीज बताई है. ठीक है, दैट इज नेक्स्ट 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6. दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन. ये जो 6 लाइन्स हैं, ये 6 लाइन्स में पोएट एनिमल्स की क्वालिटीज बता रहे हैं कि क्यों वो एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा प्रिफर करेंगे, क्यों एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. So we'll just read the qualities of animals now. They do not sweat and whine about their conditions. Sweat and whine. Sweat and whine मतलब परेशान होना और complain करना. ठीक है, sweat here means to complain. ठीक है, विन का मतलब होता है क्राई, रोना, टू क्राई लाउडली.
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं उनकी जो भी कंडीशन होती है ना, वो उससे परेशान होते हैं, ना किसी को कंप्लेन करते, ना हम ना अपनी कंडीशन को देख के रोते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 6 क्वालिटीज आपको बताई जा रही है, इसे आपको ह्यूमन बीइंग के नेचर से कंपेयर करना है बाय योरसेल्फ। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज एनिमल नहीं करते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स करते हैं। उनकी जो भी कंडीशन होती है, परेशान होते हैं, किसी न किसी से डिस्कस करते हैं, है ना, कि रोते हैं कि अरे यार मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया एंड ऑल, वेयरएज एनिमल्स ये सारी चीजें नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब नेक्स्ट क्वालिटी बता रहे हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। डार्क हियर मीन्स नाइट। ठीक है, रात का अंधेरा, नाइट प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि रात में अकेले वो बैठकर अपने अपनी कंडीशन के लिए, अपने पापों के लिए वो बैठकर रोते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो रात में देर तक जागते हैं और रोते रहते हैं, वेयरएज एनिमल्स ये सारी चीजें नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपनी भगवान के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी बताते हैं। ठीक है, डू नॉट मेक मी सिक, सिक मतलब गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि बताते कि अरे हमारे भगवान की टुवर्ड्स हमारी क्या ड्यूटी है, हमें इस समय मंदिर जाना चाहिए, इस समय पूजा करनी चाहिए, हमें भगवान को ऐसा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी बताते हैं कि हमें भगवान के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, वो करो या ना करो लेकिन लोगों को बोलकर जरूर बताएंगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं भगवान के लिए एंड ऑल। लेकिन एनिमल्स इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन हियर मीन्स एनिमल। क्यों कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि डिससेटिस्फाइड है। Not one is demented with the mania of owning things. Demented means एक तरफ से अपने आप में ईगो फील करना, या किसी के पास बहुत चीजें हो जाती है तो बहुत ज्यादा egoistic हो जाता है, एक पागलपन सा हो जाता है उसमें। Mania of owning things, mania मतलब एक तरीके से क्रेज है। ठीक है, कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स है तो जो उनके पास थिंग्स होती है, द थिंग्स दे ओन, ठीक है, उससे लेकर के उनमें क्रेज सा हो जाता है कि और मेरे पास इतना स्मार्टफोन है, मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी वॉच है ना। तो और ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं, ये ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन एनिमल्स में इस तरीके की चीजें नहीं है। इन सारी चीजों के पास, ह्यूमन बींग्स के पास इतनी सारी सामान होने के बाद भी ह्यूमन बींग्स हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन एनिमल्स डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ना ही उनमें क्रेज होता है कि उनके पास क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स टू अनदर मीन्स स्टैंड ऑन नीज, कि जैसे कि होता है ना कि हम घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं, है ना। हम अपने पूर्वजों के सामने, अपने बड़ों के सामने, हम भगवान के सामने क्या करते हैं, अपने नी पर बैठते हैं और उन्हें प्रे करते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि एनिमल्स ये चीज नहीं करते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ना वो अभी प्रेजेंट में किसी के सामने झुकते हैं, अपने नी पर बैठ के उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, ना ही उनके पूर्वज जो कि हजारों साल पहले रहे। नॉट टू हिज काइंड मतलब उनके जैसे दूसरे एनिमल्स जो कि हजारों साल पहले रहे हैं, दैट इज पूर्वज। तो बता रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स अपने एंसेस्टर्स जो कि जिंदा हैं और जो कि मर चुके हैं, ठीक है, हमारे एल्डर्स और हमारे एंसेस्टर्स, उनके सामने हम नील डाउन होते हैं, हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, हम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, हमारी इच्छाएं उन्हें बताते हैं कि अरे भगवान मेरे लिए ये कर दो, अपने एंसेस्टर्स के सामने मेरा मेरा ये काम कर दो, मेरे काम में मेरी मदद कर दो। ऐसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो लोग कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो फर्दर वो क्या कह रहे हैं, नॉट वन अगेन ये एनिमल है कि वो कि ऐसा नहीं कि किसी एक को ज्यादा रेस्पेक्ट, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल मतलब ऑल आर इक्वली रेस्पेक्टेड। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अमीर को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पॉपुलर फेमस लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, गरीब को कम रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टेबल। और कोई भी अनहैप्पी नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास इतनी सारी चीजें होते हुए भी दे आर ऑलवेज अनहैप्पी, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है।
So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. So further poet क्या कह रहे हैं? They show me their relations to me and I accept them. तो एनिमल्स क्या करते हैं कि एनिमल्स क्लियरली शो करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पेट डॉग है, पेट पेट एनिमल है, तो उसका लव, उसका ग्रेटिट्यूड हमें शो करता है। इसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है, वो रिलेशनशिप शो करते हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो ह्यूमन बीइंग से कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें हैं। और पोएट इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पोएट एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स के से ज़्यादा एनिमल्स के साथ रहना प्रिफर करेंगे। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। नाउ यहाँ पे टोकन ऑफ माई सेल्फ क्या होता है? टोकन मतलब कोई भी साइन या सिंबल्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज होती है, दैट इज लव, हैप्पीनेस, केयर, रेस्पेक्ट, है ना। ये जो सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होने चाहिए। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स। टोकन ऑफ माई सेल्फ मतलब टोकन क्या है? वो चीज़ें जो कि हमें एक इंसान बनाते हैं, जो मॉरल वैल्यूज हमें होने चाहिए, जो हमें क्वालिटीज होनी चाहिए, वो है टोकन्स। तो बता रहे हैं कि एनिमल्स हमें ह्यूमन बींग्स की टोकन्स हमें शो कर रहे हैं। दे एविंस, एविंस का मतलब होता है शो करना, जताना। क्या जता रहे हैं? इंसानियत जता रहे हैं। देम प्लेनली इन द पोजिशंस, ठीक है। प्लेनली मतलब सिंपली। तो यहाँ पे इन दो लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जो मॉरल वैल्यूज ह्यूमन में होने चाहिए, वो एनिमल्स सिंपली शो कर रहे हैं कि वो सब कुछ उनमें है। दे पोजेस ऑल दोज क्वालिटीज दैट ह्यूमन बींग्स शुड हैव। ओके, और इसे पोएट एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। टोकन्स अगेन ह्यूमन क्वालिटीज। अब पोएट कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि एनिमल्स में इतनी सारी क्वालिटीज कहाँ से आई है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजिबली ड्रॉप देम। सो पोएट कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि एनिमल्स में कितनी इतनी सारी क्वालिटीज़ कहाँ से आई है। फर्दर कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस जंगल से मैं पहले कभी गया होऊंगा और अनजाने में मेरी ये सारी क्वालिटीज़ मैं यहाँ पर छोड़ दिया होऊंगा, जो कि एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के ब्रेन जो है काफ़ी शार्प है, हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बट स्टिल हम बहुत कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन एनिमल्स में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ईगो नहीं है। तो कह रहे हैं एनिमल्स में क्वालिटीज़ कहाँ से आई है? तो कह रहे हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी ये सारी क्वालिटीज़ छोड़ दी हैं, जो कि एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। सो दिस वाज द पोएम, जहाँ पे पोएट बता रहे हैं, पोएट एक तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के नेचर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सारी जो 6 क्वालिटीज बताए हैं एनिमल्स की, ये कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बींग से कि हम ये सब नहीं करते हैं, हम ये सब करते हैं जो ये क्वालिटीज एनिमल्स में है या नहीं है। हम अपनी कंडीशन को लेकर रोते हैं, परेशान होते हैं, एनिमल्स नहीं होते हैं, वो जो है खुश होते हैं। हम रात भर जागते हैं और रोते हैं अपने सिंस के लिए, लेकिन एनिमल्स भी ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स गॉड की टूवर्ड्स अपनी ड्यूटी को बोलकर बताते हैं, एनिमल्स नहीं बताते हैं। ह्यूमन बींग्स हमेशा डिससेटिस्फाइड होते हैं, जो भी चीज़ें उनके पास हैं उसमें ईगो फील करते हैं, पर तब भी उन्हें और चीज़ें होनी चाहिए होती है, लेकिन एनिमल्स के पास भी ये चीज़ कुछ नहीं है। ह्यूमन बींग्स अपने एंसेस्टर्स के सामने, अपने पूर्वजों के सामने नील डाउन होकर उन्हें प्रे करते हैं, अपने काम पूरा करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प सपोर्ट मांगते हैं। वरस एनिमल्स ये भी एक चीज़ नहीं करते हैं। देन ह्यूमन बींग्स हमेशा अनहैप्पी होते हैं, रेस्पेक्ट उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन एनिमल्स सभी को इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स क्लियरली शो करते हैं, जो कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये वो क्वालिटीज़ हैं, ये वो पोजीशंस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में होना चाहिए था, लेकिन ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, और ये एनिमल्स में है। अब पोएट सोच रहे हैं कि कहाँ से आया उनके पास। हो सकता है कि ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स ने छोड़ दी हैं, इस वजह से एनिमल्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, अब जल्दी से इसकी मैं आप लोगों को पोएटिक डिवाइस बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, राइमिंग स्कीम। इस पोएम में अगर आप देखोगे तो इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, हर एक वर्ड दूसरे से अलग है। तो इस टाइप की पोएम को कहते हैं फ्री वर्स, फ्री वर्स, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री हैंड लिखी गई है, इस वजह से इसकी राइमिंग स्कीम होगी फ्री वर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। सो यहाँ पे बार बार जो है आई साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन में अगर आप देखोगे तो आई साउंड रिपीट हो रहा है। आई साउंड रिपीट हो रहा है मतलब यहाँ पे आपका वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। वॉवल साउंड जहाँ रिपीट होता है दैट विल बी एसोनेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आई साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है एसोनेंस। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम देखेंगे थर्ड लाइन में आपको आ रहा है लॉन्ग एंड लॉन्ग। थर्ड लाइन में आपको आ रहा है लॉन्ग एंड लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद एक और एक लाइन में आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग एंड लॉन्ग दैट इज एक वर्ड आपका दो बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका राइमिंग स्कीम होगा वो होगा रिपीटेशन। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग एक वर्ड आपका दो बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। फर्स्ट वाली लाइन में वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, आई साउंड, इस वजह से एसोनेंस। यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग एक वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से रिपीटेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये तीन लाइन आप देखोगे तो तीनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। ठीक है, सो ऐसे ऐसे लाइंस जो कि कंटिन्यू दो या तीन लाइन सेम वर्ड से रिपीट होती है, दे डू नॉट से रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी राइमिंग स्कीम आएगी दैट विल बी एनाफोरा, ANA। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ नेक्स्ट थ्री लाइंस में नॉट वन इज, नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, अगेन यहाँ पे लाइंस आपकी रिपीट हो रही है नॉट वन से, तो यहाँ पर भी जो आपका राइमिंग स्कीम होगा वो होगा एनाफोरा। ओके, नाउ एक दो तीन चार। ठीक है, अब इसके बाद आपकी फिफ्थ लाइन। ओके, फिफ्थ लाइन में आपका वर्ड आ रहा है मेक मी। ओके, अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पर आपका ये रिपीट हो रहा है मेक मी। ओके, ये मेक मी रिपीट हो रहा है, दैट इज यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, मेक मी दो एम से रिपीट हो रहा है एक साथ, इस वजह से यहाँ पे आ गया एलिट्रेशन। ओके, सो एम दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। तो अभी तक हमने कितनी पोएटिक डिवाइसेस देखी, एसोनेंस, रिपीटेशन, एनाफोरा, एलिट्रेशन, चार हमने यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस देख ली है। ठीक है, इसके अलावा एक और एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज की गई है, दैट इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर होता है ऐसे वर्ड्स जो कि हम एक मीनिंग जानते हैं लेकिन उसका पोएम में दूसरा मीनिंग यूज हो रहा है, दैट इज यहाँ पे स्वेट। स्वेट का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में होता है पसीना, लेकिन यहाँ पे स्वेट का मीनिंग दिया गया है परेशान होना। ठीक है, विन का मीनिंग होता है जोर से रोना, लेकिन यहाँ पे पोएम में विन का मीनिंग दिया गया है कंप्लेन करना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है टोकन्स।
टोकन मतलब जनरली टोकन का हमारी लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे टोकन का मीनिंग दिया गया है साइंस एंड सिंबल्स। तो ऐसे वर्ड्स जिसका नॉर्मल यूसेज में कुछ और मीनिंग होता है लेकिन पोयम में कुछ और सिग्निफाई करता है, जहाँ ऐसे वर्ड्स होते हैं वहाँ पे पोएटिक डिवाइस आती है मेटाफोर। ठीक है, तो इस पोयम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स पोयम है। इसके बाद यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आई साउंड वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। देन इस लाइन में लॉन्ग एंड लॉन्ग रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आई साउंड रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे है एसोनेंस। नाउ यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग एक वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लाइंस स्टार्ट हो रही है सेम वर्ड से, दे डू नॉट दे डू नॉट दे डू नॉट, इस वजह से यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेक मी कंटिन्यूसली कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इस वजह से इस लाइन में पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। अगेन नेक्स्ट थ्री लाइन में नॉट वन नॉट वन नॉट वन, तीन लाइन एक ही वर्ड से सिमिलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज की गई है दैट इज मेटाफोर। मेटाफोर यूज होता है जब ऐसा कोई वर्ड जिसका ट्रू मीनिंग कुछ और होता है लेकिन पोयम में कुछ और सिग्निफाई करता है, दैट इज स्वेट एंड विन। स्वेट का नॉर्मल मीनिंग नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड होता है पसीना, और विन का होता है क्राई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोयम में स्वेट का मीनिंग दिया गया है परेशान होना, और विन का मीनिंग दिया है कंप्लेन करना। ओके, इसी तरीके से टोकन्स, टोकन्स का इंग्लिश डिक्शनरी में और मीनिंग होता है कि जनरली हम कहीं जाते हैं तो हमें टोकन दे दिया जाता है, अगर हम फूड स्टॉल पे जाते हैं पेमेंट करते हैं तो हमें कॉइन सा दिया जाता है, टोकन दिया जाता है कि हम वो दिखाएंगे उसके बदले हमें फूड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोकन का क्या मीनिंग होता है, साइंस एंड सिंबल्स जो कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है लेकिन पोएम में कुछ और सिग्निफाई किया जाता है, वहां पर आता है मेटाफोर है। ठीक है, सो ये 5 यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है, और एट द एंड इसमें आपको बताया गया है द कंपैरिजन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स है, इसके अलावा ये 5 यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है। So I hope the poem is clear to you all. If you have any doubt, just ask me.